हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज किसी का जन्मदिन है। जन्मदिन क्या होता है? जब हम लोग जन्म लेते हैं, जिस दिन जन्म लेते हैं उसको हर साल हम लोग याद करते हैं कि आज के दिन हमने जन्म लिया था। इस डेट को आई बॉर्न इन दिस डे, एंड ऐसे हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, खुशी मनाते हैं। And you also celebrating, everybody celebrating different types. So somebody celebrate in a hotel in big, he spent big amount, and so many guests came there, isn't it? And somebody only in his family, only their family with his family member is celebrating these days. And somebody with friends, somebody in school also. In school also you bring some sweets, some chocolates and distribute to your friends and teacher, and the wishes you gain, so many congratulations and happy birthday and so many types of the wishes he gives you, he wish to you. So जन्मदिन के ऊपर ही ये चैप्टर है। दिस चैप्टर इज ऑन जन्मदिन। द शीर्षक इज ऑल्सो रिटेन हियर जन्मदिनोत्सवः। चैप्टर 8 यू सी रिवीजन, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज जन्मदिनोत्सवः। जन्मदिनोत्सव। अब इसमें जन्मदिन है। अब जन्मदिनोत्सव क्यों लग गया इसमें? बिकॉज दिस इज द जन्मदिन इज लाइक अ फेस्टिवल, यू सेलिब्रेटिंग विथ जॉय, विथ हैप्पीनेस, एंड दिस बिकम अ लाइक जस्ट लाइक अ फेस्टिवल। जैसे आप खुश रहते हो दशहरा में, दिवाली में, न्यू ईयर में, एनी अदर फंक्शन, सो लाइक दैट दिस डे बिकम जस्ट लाइक उत्सव। एक उत्सव बनता है, परिवार के लोग खुश रहते हैं। यू आर ऑल्सो बिकम हैप्पी, एंड योर फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव एंड नेबर, ऑल पीपल बिकम हैप्पी एंड दे एंजॉय दिस डेज, इजंट इट? तो इसका अगर हम लोग संधि विच्छेद करें, ये वर्ड है इतना बड़ा जन्मदिनोत्सव है, इसका संधि विच्छेद करें तो क्या वर्ड मिलता है? एक तो हमेशा हमने बताया है आपको कि टू और मोर देन टू वर्ड यू फाइंड, एंड दे आर ऑलवेज यू फाइंड द मीनिंगफुल वर्ड. So here what you see in this word, the meaningful two word is first one जन्मदिन and second one उत्सवः. जन्मदिनोत्सवः, जन्मदिन प्लस उत्सव, दिस इज कॉल्ड जन्मदिनोत्सव। जन्मदिन का उत्सव हम मना रहे हैं। अंडरस्टूड? सो सी, ओपन योर बुक एंड बुक नंबर, पेज नंबर इज 28, द चैप्टर इज 8 जन्मदिनोत्सव। See in your book, one girl is here and she is wearing a different type of clothes, and she is celebrating his birthday with his friends and teachers. This celebration is happening in school, you know. So this type of in school how you celebrate, that is written here. See in your book, धाराया जन्मदिनम अस्ति. Here a girl, her name is Dhara. She is celebrating her birthday, and she wears a new clothes. She gathered her friends and teacher also, and the friends are very happy. Her friends are so happy. She brings
some brings toran, some brings flowers, some brings leaves for making a toran and decorate the place where this festival will going to happen. And the teachers are also gives him blessings, gives her blessings. And also here some Vaishali and Mamta is her best friend, because one is bringing the Ashopalam leaves and make a toran and decorate. And also another friend decorating so many types of that place where they celebrate her birthday. Okay, let's start. Dharaya Janmadinam asti. Dharaya Janmadinam asti. Today is Dhara's birthday, you know. And sa nutan vastram dharayati. She wears new clothes. You also wear in your birthday new clothes. And so many sweets your mom making in your house. Mata dharaye mishtannam dadati. Mom gives to Dhara so many sweets. Sa mishtannam vidyalaya anayati. She brings the sweets to her school. आप लोग भी you also brings the chocolate or sweets in your school and distribute to your friends and teacher na, like that. Sujla Bhagini Dharaya Shikshika asti. Sujla Bhagini. Dhara's class teacher's name is here written Sujla Bhagini. Sujla Bhagini is her teacher. Sa Dharam Prichhati Adya Kim Visheshah. She asks to the Dhara that today is what special, why you are wearing new clothes and looking something special. Dhara vadati. Dhara replying, Adya mam janmadinam asti. Today is my birthday. Sujla dharaye abhinandanam darati. Then Sujla, her teacher, gives him or said him congratulations or happy birthday or so many blessings. That abhinandanam means the congratulations. Dhara Veena Bhagini Putra asti. Sujla Bhagini, one teacher's name is Sujla Bhagini, and Dhara asks her that Veena Bhagini Putra asti. Where is the Veena man? Veena, my teacher. Sujla Sa Karyalaya asti. She is in the office. यहाँ पे जो भी आप लोगों को वर्ड हार्ड लग रहे हैं वो आप लोग लिखते जाना. ऐसे मैं लास्ट में टिक लगा दूंगी. सा कार्यालय अस्ति. शी इज इन द ऑफिस. धारा वीणा समीपम गच्छति. धारा, then the girl whose birthday is, her name is Dhara na, so she goes to the teacher which name is Veena. Sa vadati. Who speaks? Dhara. Sa vadati mahodaye kripya prarthana sabhayam agachatu. So teacher, please come to the prayer assembly or prayer place, the place of prayer. Veena vadati aham agachami. तो वो बोल रही है ओके, आई एम कमिंग, मैं आ रही हूँ. धाराया सखी ममता आम्रपाली वृक्षस्य पर्णानि आनयति. धारा's friend ममता आम्रपाली वृक्ष से. आम्रपाली वृक्ष किसको बोलते हैं? आसोपालव, आपने सुना है ना, उसको बोलते हैं. आसोपालव के पेड़ से वो पर्णानी आनयति, मतलब उसके पेड़ से पत्ते लाती है. आम्रपाली लिख लो. ये आप लोगों को लगेगा कि
का वो पत्ता लाती है। और क्या करती है? सा तोरणम ग्रंथति, ग्रंथति मतलब बनाती है, मेक्स। और गूंथना, गूंथना उसको बोलते हैं ग्रंथति। ग्रंथति मतलब मेक्स अ तोरण, तोरण को बनाती है, वो उसको गूंथती है। वैशाली प्रार्थना खंडे सुशोभनम करोति। अनदर फ्रेंड्स नेम इज वैशाली। व्हाट शी इज डूइंग? शी इज डूइंग द, शी इज डेकोरेटिंग द दैट प्लेस, प्रार्थना खंडे, प्रार्थना खंड में, प्रार्थना खंड को, जो उसको जहाँ पे होने वाला है वो फंक्शन, दैट प्लेस, द हु डेकोरेटिंग? वैशाली धाराया, धारा's friend Vaishali decorating that place, that the place of prayer। कोई हॉल होगा, कोई प्लेस होगा तो उसको वो डेकोरेट करती है। एंड वन फ्रेंड इज ममता। ममता what doing? ममता brings the leaves of आसोपालव tree, आसोपालव के ट्री का पत्ता लाती है एंड मेक्स द तोरण। Then what happened? Then धारा सरस्वती मातु चित्रम समीपम गच्छति। Then जब सब कुछ सज गया, सब हो गया, तो धारा सरस्वती मातु द चित्र समीपम गच्छति। Then धारा go near to the picture of सरस्वती, goddess सरस्वती, सरस्वती माता के चित्र के पास वो जाती है। अद्य धारा एकादशमें वर्षे प्रविशति। आज धारा का कौन सा, कितने वर्ष की हुई वो? 11 years old। She becomes 11 years old today। So today she is entering in the 11 years। वो 11वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। अतः 10 साल की हुई, एकादशमें वर्षे प्रविशति। सो 10 years she completed ना, 10 years completed, then she enters into the 11 years, 11 years now running। अतः सा तत्र एकादशादीपान् प्रज्वालयति। सो she there 11 leaves, एकादश आदीपान, एकादश दीपान। यहाँ पे क्या है? एकादशी पान नहीं है, यहाँ इसका एकादशी पान का देखो संधि विच्छेद क्या होगा? वर्ड है एकादशी पान। तो यहाँ पे आप संधि विच्छेद करोगे तो आप ये भी निकाल सकते हो, एकादशी एंड पान। बट हियर इट इज नॉट। एकादशी हो गया जो 11वीं तिथि होती है उसको एकादशी बोलते हैं, एंड पान मतलब पत्ता होता है। बट यहाँ पर क्या है? ये गलत हो जाएगा। यहाँ है एकादश, एकादश एकादशादीपान है, एकादशा, एकादशा दीपान। तो आप निकाल सकते हो एकादशी पान, एकादशादी मीन्स एकादश प्लस आदि प्लस पान। बट इट बिकम्स
एकादशः प्लस दीपान, मतलब एकादशः दीपान, एकादश 11 जो है, एकादशा दीपान है, 11 दीप को प्रज्वलित करती है। बिकॉज इज इंटरव्यू जब यू ऑल्सो नो यू burn that day candle, and how many candle you burn that day in your birthday? You completed 9 years, then you blow the 10 candle, then you flame the 10 candle, and 9 one you put off, उसको बुझा देते हो, है ना, and then one is continuing to burning. So यहाँ क्या है, अतः सा तत्र एकादश दीपान प्रज्वालयति. So she is also flaming the 11 lamp there. Saraswati Matu Vandanam Karoti, and also praying to the Saraswati goddess Saraswati. सरस्वती माता की वंदना करती है, क्योंकि वो स्कूल में मना रही है। और स्कूल क्या है, विद्यालय है, विद्या का आलय है, विद्या का आलय, आलय मीन्स घर, हाउस, विद्या का घर है। और यहाँ विद्या की देवी कौन है, सरस्वती माता है विद्या की देवी, जो वो सबसे पहले सरस्वती माता की वंदना करती है। अनंतरम यज्ञ अपि भवति, एंड देन आफ्टर वन small यज्ञ हवन आदि also happening there. धारा अक्षय पात्रे मुष्टिधानम स्थापयति. धारा अक्षय पात्रे, अक्षय पात्र है, कुछ किसी को बोलते हैं अक्षय पात्र में कोई लुटिया टाइप का कोई चीज होगा, या बाउल होंगे, कुछ भी होंगे, अक्षय पात्र उसका नाम है। तो धारा इन द अक्षय पात्र ही पोर या वो डालती है, तो पोरिंग बोल सकते हैं, पोरिंग द धान, ग्रेन, सम ग्रेन टू द इन द अक्षय पात्र। अक्षय पात्र का अक्षय पात्र ही रहने दो, जो उसका कोई मीनिंग नहीं है। मतलब है कि धारा अक्षय पात्र में मुष्टि धान, एक मुट्ठी धान रखती है। अनंतरम सा शुभ संकल्पम करोति, एंड देन आफ्टर सी डूइंग द सम वो संकल्प करती है, अपने आप को दृढ़ निश्चय करती है। किसी भी पूजा पाठ में आपने देखा होगा कि कुछ हाथ में पंडित लोग देते हैं और फिर संकल्प कराते हैं, लाइक दैट। सो आचार्य जन्मदिनस्य शुभाशीष ददाति, एंड आचार्य द ऑल टीचर्स गिव्स हर द ब्लेसिंग्स फॉर हर बर्थडे, उनके जन्मदिन की शुभाशीष देते हैं। वीणा धारायै आशीर्वादं ददाति, वीणा हर टीचर इज ऑल्सो गिव्स टू हर सम ब्लेसिंग्स, एंड सुजला अपि आशीर्वादं ददाति. Sujala when is also her teacher, she also gives her the blessings and congratulating. Ante dhara sarvebhya mishtanam vidrati, and at last dhara distribute the sweets to all people, all friends, all students and all teachers, everybody, जितने भी लोग हैं वहाँ पे, all people he distribute the sweets. धारा अतीव आनंदम अनुभवती, and then धारा become so happy, बहुत ही आनंद, you know, आप भी खुश रहते हो ना in your birthday, you all know, कोई भी जो है आपको डांट नहीं पड़ती है उस रोज, है ना। आचार्य श्लोकम गायति, and then after what happened, the all teachers sings a श्लोक, वो श्लोक अपना गाना के रूप में गाते हैं, उनको उसको धारा को आशीर्वाद देते हैं। क्या बोलते हैं, सदा भवतु सुखिनः, सदा भवतु सुखिनः, वो लोग टीचर लोग आशीर्वाद देंगे ना। सदा मतलब हमेशा, ऑलवेज, भवतु मतलब रहो, सुखिनः सुखी, सुखी रहो, ऑलवेज यू बिकम
happy. सदैव च निरामयः, सदैव मतलब always, च और हमेशा रहो तुम स्वस्थ, निरामयः मतलब स्वस्थ रहो। विद्यावान यशस्विनः मतलब विद्यावान बनो, यशस्वी बनो, एंड भवतु चिरजीविनः और दीर्घायु रहो तुम। So in English how you say this meaning of this shloka? Sada bhavatu sukhinah, always you become happy, healthy and happy. Stay always healthy and happy, ऐसे बोलो, stay always healthy and happy, and become knowledgeable, you become intelligent, you become knowledgeable, glorious and successful. You become knowledgeable, glorious and successful, and also long life, and also you stay long life. ऐसे इसका मीनिंग हुआ। समझ में आई ना बात? जैसे सदा भवतु सुखिना मतलब आप सदा सुखी रहो और निरोगी रहो, स्वस्थ और सुखी रहो, और विद्यावान बनो, यशस्वी बनो, आपको यश मिले, और चिरजीविना मतलब दीर्घायु हो। ऐसे बोलते हैं ना, तो उसी को बोलना है कि स्टे ऑलवेज यू हैप्पीली एंड हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ, happily healthy and long life, and also you get glorious and successful in your life. ऐसे इतना उन्होंने आशीर्वाद दिया, सारे टीचरों ने मिलकर उन्हें गाना के रूप में, श्लोक के रूप में आशीर्वाद दिया। अंडरस्टूड? अब इसमें हार्ड वर्ड क्या है, आप लोगों को कौन सा हार्ड वर्ड लगा? जैसे कि ग्रंथ तीमेक्स आम्रपाली वृक्षस्य आसो पार्वती, और हो गया यशस्विना, सुखिना, सदैव निरामय, हैप्पीली, always, healthy. विद्यावान, meritorious, यशस्विना, ग्लोरियस, चिरजीविना। और एक वर्ड है चिरजीविना मतलब लॉन्ग लाइफ, यू गेट लॉन्ग लाइफ, स्टे लॉन्ग लाइफ। स्टे लॉन्ग लाइफ, अंडरस्टूड? तो ये मीनिंग है। अब इस श्लोक का अर्थ आप लोग खुद लगा सकते हो।